Hello students, today's topic is prepositions. Prepositions show the relation between a noun or a pronoun and other words in a sentence. Prepositions show the relation between a noun or a pronoun and other words in a sentence. Prepositions सेंटेंस में, वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम का जब संबंध किसी दूसरे शब्द के साथ दर्शाते हैं. प्रपोजिशंस वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किसी दूसरे शब्द के साथ दर्शाते हैं तो उसे प्रपोजिशन कहते हैं. उस वर्ड को प्रपोजिशन कहते हैं क्योंकि प्रपोजिशन का यूज करके नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन किसी दूसरे वर्ड के साथ दर्शाया जाता है. एंड दीज अदर वर्ड्स में बी नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव. और ये जो अदर वर्ड्स हैं जिसके साथ रिलेशन शो किया जाता है ये नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव हो सकते हैं. और इन अनदर वे वी कैन से दैट प्रपोजिशंस आर दोज वर्ड्स which show the position of any object. Prepositions are those words which show the position of any object. Prepositions ऐसे words होते हैं जो किसी objects का position show करते हैं, किसी objects का position show करते हैं. For example, there are 2 apples in the basket. There are 2 apples in the basket. So note the relation that in I and in shows between apples and basket. इसमें इस सेंटेंस में जो in प्रपोजिशन in है ये किसके बीच में रिलेशन बता रहा है? एप्पल्स एंड बास्केट के बीच में. There are 2 apples in the basket means टोकरी में 2 एप्पल्स हैं. नेक्स्ट, राम gave the medicine to me. Ram gave the medicine to me. So the word to, to shows the relation between medicine and me. और इस वाक्य में to जो प्रपोजिशन है, to प्रपोजिशन किसके बीच में रिलेशन शो कर रहा है? मेडिसिन एंड मी के बीच में. So the words in, I and in and to are placed before nouns or pronouns and they show the relation between them and some other words in a sentence. These words are called prepositions. Look at the following picture. So what do you see? इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं? A boy is sitting under the tree. A boy is sitting under the tree. एक लड़का जो है ये पेड़ के नीचे बैठा है. A boy is sitting under the tree. Next, a cow is standing near the lake. लेक के पास, लेक के बगल में काऊ खड़ी है, लेक के पास. Next, a house is behind the tree. A house is behind the tree. Behind means पीछे. House मकान जो है ये पेड़ के पीछे है. A boy is swimming in the lake. Boy जो ये लड़का है ये लेक में स्विमिंग कर रहा है, तैर रहा है. Next, a bird is sitting on the roof of the house. A bird is sitting on the roof of the house. ये जो चिड़िया दिख रही है ये मकान का जो छत है उस पर बैठी है. On the roof of the house. So the words under, near, behind, in, on are prepositions. ये जो words हैं under, near, behind, in, on ये prepositions हैं and they show the relation of one thing with another. और ये क्या शो कर रहे हैं? किसी एक चीज का दूसरे के साथ रिलेशन शो कर रहे हैं. Let's do exercise. Underline the prepositions in these sentences. Underline the prepositions in these sentences. First sentence is the bird is flying over the tree. The bird is flying over the tree. So what is the preposition in this sentence? Over. O-V-E-R, over. So we will underline the word over. Next sentence is Jay sat between Ronnie and Sunny. Jay sat between Ronnie and Sunny. So in this sentence, the word between is a preposition.
बिटवीन, BETWEEN, ये बिटवीन जो है ये दो लोग के बीच में रिलेशन शो कर रहा है। नेक्स्ट, प्लीज लिसन टू मी, प्लीज लिसन टू मी। So in this sentence we will underline the word to, TO2. Next, the clock is on the wall, the clock is on the wall. So what is the preposition in this sentence? On, O-N, on. So we will underline the word on. यहाँ जो on है ये clock और wall के बीच में relation show कर रहा है। Next, the dog is sleeping under the table, the dog is sleeping under the table. तो इस सेंटेंस में under, वर्ड under जो ये प्रपोजिशन है और ये टेबल और डॉग, टेबल और डॉग के बीच में रिलेशन शो कर रहा है। नेक्स्ट, आवर स्कूल इज नियर आवर हाउस, आवर स्कूल इज नियर आवर हाउस। तो इस सेंटेंस में नियर, द वर्ड नियर इज अ प्रपोजिशन, सो वी विल अंडरलाइन द वर्ड नियर बिकॉज नियर वर्ड जो है ये स्कूल और हाउस के बीच का रिलेशन शो कर रहा है। नेक्स्ट, द कार इज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द गेट, द कार इज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द गेट। कार गेट के सामने पार्क है, तो ये जो गेट और कार के बीच का रिलेशन है कौन शो कर रहा है? इन फ्रंट ऑफ। सो वी विल अंडरलाइन द वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ प्रपोजिशन है। द कार इज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द गेट, गेट और कार के बीच का जो रिलेशन है वो इन फ्रंट ऑफ दर्शा रहा है। नेक्स्ट, शी इज राइटिंग विद अ पेंसिल, शी इज राइटिंग विद अ पेंसिल। सो इन दिस सेंटेंस वी विल अंडरलाइन द वर्ड विद, WITH, विद, बिकॉज वो किससे लिख रही है? पेंसिल से लिख रही है, तो वो शी और पेंसिल के बीच का रिलेशन जो है वो विद से दर्शाया जा रहा है, वर्ड विद का यूज करके। नेक्स्ट, आई बॉट द वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, आई बॉट द वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। सो इन दिस सेंटेंस द वर्ड फ्रॉम is a preposition, from, FROM, from. I bought the vegetables from the market. मैंने बाजार से सब्जियां खरीदी। तो सब्जी कहाँ से खरीदा गया है? मार्केट से। तो वेजिटेबल्स और मार्केट के बीच का रिलेशन फ्रॉम से शो किया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है। नेक्स्ट, द टीम विल रीच द ग्राउंड इन द मॉर्निंग, द टीम विल रीच द ग्राउंड इन द मॉर्निंग। तो इस सेंटेंस में कौन सा प्रपोजिशन है? इन, IN इन प्रपोजिशन है, सो हम इसे अंडरलाइन करेंगे। एंड द लास्ट सेंटेंस इज द मेडिसिन इज फॉर निशा, द मेडिसिन इज फॉर निशा। मेडिसिन और निशा के बीच का रिलेशन शो किया जा रहा है फॉर का यूज करके। मेडिसिन किसके लिए? निशा के लिए है, सो फॉर जो ये प्रपोजिशन है, क्योंकि फॉर मेडिसिन और निशा के बीच का रिलेशन शो कर रहा है। Underline the prepositions in the following sentences. So students, you have to do this exercise. Underline the prepositions in the following sentences. First sentence is Loveleen looked at the storybooks. Next, Rohan lives near Mahatma Gandhi Road. Next, the wallet is lying on the table. Next, we will have breakfast at 8 o'clock. Next, the puppy was sleeping under the table. Next sentence, Radha gave the ice cream to me. Next, he banged the door behind him. Next, the men ran after him. The men ran after him. Next, my friends stay near my house. Next sentence is my friends stay near my house. And the last sentence is the rat peeped into the hole. The rat peeped into the hole. तो इस एक्सरसाइज में आपको प्रपोजिशंस को अंडरलाइन करना है। Look at the pictures and choose the correct prepositions from the brackets. ब्रैकेट्स में प्रपोजिशंस दिए गए हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं, ये कौन सा प्रपोजिशन
सही है इस सेंटेंसेस के लिए। जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उनके आगे कुछ प्रपोजिशंस भी दिए गए हैं, तो उस सेंटेंस के लिए कौन सा प्रपोजिशन सही रहेगा, सूटेबल रहेगा, वो हमें वहाँ पर राइट करना रहेगा। So first sentence is the clock is dash the wall. The clock is dash the wall and options are on or between. तो clock on और between इन दोनों में से हमें सही प्रपोजिशन यूज करना है। तो the clock is on the wall. clock कहाँ पर है? दीवार पर है। तो on का यूज हम करते हैं पर के लिए, दीवार पर। तो between का यूज करते हैं जब दो लोगों के बीच की बात हो, मतलब बीच में। बिटवीन का मतलब बीच में, मिडल वन, तब हम बिटवीन का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्लॉक सिंगल नाउन है, ये क्लॉक जो है ये नाउन है, तो यहाँ पर केवल क्लॉक है। तो इसका किसी से मतलब किसी दो लोग के बीच में ऐसा बात नहीं ना किया जा रहा है कि किसी दो घड़ी के बीच में या दो लोगों के बीच में ये घड़ी है, तो इसलिए हम बिटवीन का यूज नहीं करेंगे, ऑन का यूज करेंगे, क्योंकि दीवार पर घड़ी है। द क्लॉक इज ऑन द वॉल। Next, the cat is sitting dash the kittens. The cat is sitting dash the kittens. जो cat है दिख रही है इस पिक्चर में, cat ये kittens के बीच में बैठी है। तो हम बीच के लिए क्या यूज करते हैं? between और on? between. We will use between. cat kittens के बीच में बैठी है, दोनों के बीच में ये cat बैठी है, तो इसलिए हम यहाँ पर between यूज करेंगे। The cat is sitting between the kittens. Next, the boy is playing dash a bat. The boy is playing dash a bat. And the options are with or in front of. The boy is playing dash a bat. In front of का मतलब होता है सामने, सामने। तो यहाँ पर सामने का ऐसा कुछ सेंस नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे with. The boy is playing with a bat. Boy जो है वो किससे खेल रहा है? बैट से खेल रहा है, so we will use with. The boy is playing with a bat. Next, Jeet is sitting dash the television. Jeet is sitting dash the television and options are in front of or over. So in front of हम यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं जीत कहाँ बैठा है? टेलीविजन के सामने बैठा है ना, टेलीविजन के सामने। So we will use in front of. Jeet is sitting in front of the television. Next, the teacher is standing dash the board. The teacher is standing dash the board and options are near और on. On का मतलब होता है ऊपर and near पास। तो टीचर कहाँ खड़ी है? बोर्ड के पास खड़ी है, बोर्ड के पास। तो near का मतलब होता है पास, so we will use near. The teacher is standing near the board. Next sentence is the water bottle is dash the table. The water bottle is dash the table and options are under or in. In का मतलब होता है में, in जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर है तब हम in का यूज़ करते हैं, और under का मतलब होता है नीचे, under का मतलब होता है नीचे। और यहाँ पे इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि वाटर बॉटल कहाँ पर है? टेबल के नीचे है। जब टेबल के नीचे है तो उसके लिए हम under का यूज़ करेंगे। The water bottle is under the table. वाटर बॉटल टेबल के नीचे है। नेक्स्ट सेंटेंस इज मोहन इज हाइडिंग डैश द ट्री. मोहन इज हाइडिंग डैश द ट्री एंड ऑप्शंस आर बिहाइंड और ऑन. बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, ऑन का मतलब होता है पर, ऊपर। तो मोहन पेड़ के पीछे छिपा हुआ है या ऊपर? पेड़ के ऊपर है, पीछे है। तो बिहाइंड के पीछे के लिए, सो हियर वी विल यूज बिहाइंड. मोहन इज हाइडिंग बिहाइंड द ट्री. मोहन पेड़ के पीछे छिप रहा है. नेक्स्ट, द बुक्स आर डैश द टेबल. द बुक्स आर डैश द टेबल एंड ऑप्शंस आर ऑन और इन. बुक्स कहाँ पर है? टेबल के ऊपर है ना, टेबल पर है, टेबल में नहीं है, टेबल पर है। तो हम उसको जब उस टेबल के ऊपर वो चीज़ रखी गई है और वो उससे टच कर रही है, बुक जो है ये टेबल, बुक्स जो है ये टेबल से टच कर रही है, तो हम इसके लिए ऑन का यूज करेंगे. द बुक्स आर ऑन द टेबल. नेक्स्ट, आई गिव द पेन डैश माया. आई गिव द पेन डैश माया. फ्रॉम और टू. ऑप्शंस आर फ्रॉम एंड टू. तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? फ्रॉम का मतलब होता है से किसी से जब सामान लेते हैं तो उसके लिए हम फ्रॉम यूज करेंगे. और ये दे रहा है,
मैंने माया को पेन दिया। तो किसको दिया? माया को दिया, तो वहां पर हम टू का यूज करेंगे। आई गिव द पेन टू माया, मैंने माया को पेन दिया। अंडरलाइन द प्रपोजिशंस इन द पैराग्राफ, ये पैराग्राफ दिया गया है और उसके बगल में एक पिक्चर बना है। उस पिक्चर को देख करके आपको प्रपोजिशंस को, जो पैराग्राफ में प्रपोजिशंस है, उसे अंडरलाइन करना है, क्योंकि ये पिक्चर जो है इसी पर ये पैराग्राफ लिखा गया है। ज्योति इज ऑन द सी बीच। John is lying on a beach chair under an umbrella. A boat is sailing on the water. A small boy is sitting with his father and mother in the boat. A dog is sitting near John. Jyoti's father is looking at her. They are all enjoying themselves. तो इस पैराग्राफ में आपको प्रपोजिशंस को अंडरलाइन करना है। Look at the picture and fill in the blanks with prepositions to complete the paragraph. Hints are given in the box below. ये पिक्चर हैं, दिए गए हैं जो पिक्चर, उसके बेस पर कुछ सेंटेंसेस लिखे गए हैं और ये सेंटेंसेस कंप्लीट नहीं है, इसे हमें प्रपोजिशंस का यूज़ करके कंप्लीट करना है। और कौन से प्रपोजिशंस यूज़ किए जाएंगे उसके लिए ऑप्शंस दिया गया है। ये हिंट्स दिया गया बॉक्स में ऊपर आप देख सकते हैं, नियर, ऑन, इन फ्रंट ऑफ, ऑन, टू। तो इसका यूज़ करके आपको इस पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। द गर्ल्स आर सिटिंग डैश द बेंचेस, द टीचर इज स्टैंडिंग डैश द ब्लैक बोर्ड, देयर इज अ टेडी बेयर डैश अ गर्ल, देयर इज अ टेडी बेयर डैश अ गर्ल, अ चार्ट इज डैश द वॉल, The teacher is explaining a sum dash the students. और जो हिंट्स हैं ये दिए गए हैं, नियर, ऑन, इन फ्रंट ऑफ, ऑन, टू। तो इस पैराग्राफ को आप कंप्लीट करेंगे प्रपोजिशंस का यूज करके।